So as we are conducting the session on creative thinking processes and design thinking, so I'll be inviting Professor Umesh Chaudhary to conduct the session for IIC. Thank you. Today we are going to start with the design thinking. Before we move to the design thinking, can you tell me what is design? Design is a structural layout. Design itself it is the raw structure. Why we are saying that there should be design thinking? They are using the word design and then thinking. Why we add this thinking to design? एक बार थोड़ा सा सोचिए, जब डिजाइन ही अपने आप में एक रॉ स्ट्रक्चर है, डिजाइन ही अपने आप में एक प्रोटोटाइप है, तो फिर उसके साथ थिंकिंग प्रोसेस ही ऐड है। प्रोटोटाइप तो बन गया, प्रोटोटाइप बन गया तो फिर आइटम बनी है। Because it helps in planning process. It helps in planning process. But we are saying design. We are thinking about the design. We are not talking about the process only. Structure बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है। That means ये जो प्रोटोटाइप बनता है आपका, उसको बनाने का भी प्रोसेस है। Why this particular thinking are used? क्या हो सकता है? हम लोगों ने कहा कि डिजाइन को बनाने के लिए भी अपना एक प्रोसेस होता है। That means एक पर्टिकुलर मेथड है। फिर भी ये जो डिजाइन थिंकिंग वर्ड है, this came because it says that whenever you are making any type of design, you have to think like the other person for whom you are preparing that design. ये thinking process, thinking word जो है ना, वो क्यों आया basically? It says I'm keeping myself in the shoes of the person who will be using that particular model or prototype or the product which I'm going to make. अब थोड़ी देर पहले की बात और contradictory स्टेप। So when I talk about this, suppose I want to plan a new product, है ना? मुझे देखा मैंने मार्केट में बहुत डिमांड है and I want to design because nowadays all the females are working and 90% job of female was to make chapatis. That means to cook food for their home. 90%. Very few people are there in male society who are basically into this particular part. So when I started thinking, the problem of the female is that now they are working, they are having elongated hours for working, so they need some assistance in the form of this cooking part, which is an essential job of theirs. Today also, if I talk about the mentality of the people has changed, the societal thinking is also changed. Then also now also in many families it is thought that this is the responsibility of the female. तो अब मुझे अगर उनको कुछ सुविधा देनी है, which should be well defined and well structured solution for this home cooking solutions. If I talk about around 10 to 15 years back, कभी इंस्टेंट खाने आते थे मार्केट में? No one was there. और अगर कोई आता भी था तो कोई खाना नहीं, पता नहीं प्रिजर्व किया हुआ है, क्या इसके अंदर मिला हुआ होगा, क्यों हम इसको यूज करें। और चपाती तो फीमेल कहती थी नहीं तुम सब्जी बाहर से मंगा लो बेशक से, पर चपाती में घर पे बनाओ, पता नहीं कैसा आटा होगा, कहीं घुन लगा हुआ गेहूं ना पीस दिया हो। मतलब वैरायटी ऑफ थिंकिंग वाज देयर इन द माइंडसेट। That's why you must have seen the advertisements changed. Advertisements कैसे चेंज हुई? It is pure. एक एक दाना जो है वो सिलेक्ट किए करके, वो गेहूं को सिलेक्ट करके है ना, it has been made, the flour has been made. So they were focusing on all the areas on which the female were having doubt we should use it or not. उसके बाद प्रिजर्वेटिव, उसमें लिखा हुआ आना शुरू हो गया कि नॉन प्रिजर्वेटिव्स हैं, no preservatives has been added into this component, but the shelf life is so and so, you have to utilize this product and so on so. क्यों? क्योंकि अब हमने उस पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू किया कि फीमेल्स जो है ना
what are the factors why we are developing this particular product about which the female is thinking about, and those became the quality standards. Those became the quality standards. So basically, whenever I want to develop any of the new product, it is necessary that for whom I am going to develop that particular product, I have to know in and out what and when and how from the perspective of the user. User क्या चाहता है? अब suppose if I am talking about the studies only, then if I am going to draft a syllabus, if I am going to draft a syllabus, I am into the academic council member, and I am having the responsibility that I have to design a syllabus for suppose MBA. Then what I have to see? For MBA, my stakeholders are industry. My stakeholder is employers. My stakeholder is student. My stakeholder is the institution. तो मतलब मेरे चारों stakeholders जो हैं वो easily इस particular syllabus को अपने यहाँ पर accommodate कर पाएं. And based on the syllabus, the output should be that they are employable. That they should become the employable. So I have to connect with the industry to study the need of the industry, because the outcome is placement, na? So I have to connect with the industry and study what do they require from a student, and how the student can be developed into the requirement which employer is requiring from you. So वो उसको जब मैं डिजाइन करने लगूंगी तो मेरा सिलेबस जब डिजाइन होगा, जब मैं सिलेबस को डिजाइन करूंगी तो that will be 8 part. इसीलिए IIM का सिलेबस की अगर मैं बात करूं, that is 8 part. Why? Because they are designing their syllabus on the yearly basis. As and when the technology gets changed, as and when the employer requirements gets changed, their syllabus gets changed. If I talk about the different type of accreditation bodies, they talk about the value-added courses. In your syllabus also you must have seen some are elective courses, some are your value-added courses, some are core subjects, some are your skill development subjects. Why they are there? Particular subject will be developing this particular thing. So when I talk about design, so I am talking about a great design over here. So when I am talking about a great design, I say that it should be simple. It should be simple. Because whatever I am making, it should be easily understandable by the person who is going to study it. So it is simple, and in particular that simplicity, along with that I should also implement my experience into it. Many times simple things are more effective than the complicated ones. The reason is that because complicated चीजों को समझने के लिए हमें फिर वो complication के लेवल का माइंडसेट चाहिए होता है, जो सबके पास नहीं है. इसीलिए आपने देखा होगा जब हम रिसर्च की बात कर रहे थे, जब हमने पिछली बार बीए किया तो भी मैं क्या कहती थी, कीप इट एज सिंपल एज यू कैन, कीप द लैंग्वेज सिंपल. आप पेपर लिख रहे हो तो भी मैं क्या कहती हूँ, सिंपल लैंग्वेज लिखो. यूजिंग द हैवी वर्ड्स डज नॉट मीन दैट यू हैव डन अ ग्रेट वर्क, है ना. ग्रेट वर्क कैन बी डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल वर्ड्स आल्सो. द सेम इज हियर. इफ आई एम मेकिंग अ डिजाइन, इफ इट इज अ सिंपल and the design which can be effectively implemented, so I can put my whole experience into the design while I am designing it, so that it is easy to operate and easy to use and easy to understand how to operate. Okay, so simple होना चाहिए, experience utilize हो जाना चाहिए, frictionless होना चाहिए. That means simple होगा तो obvious है, frictionless भी होगा, because जितना simple है इसका मतलब smooth है. All the steps should be performed smoothly. Then efficient होना चाहिए. When these two come together and this gets implemented, efficiency comes, and then complexity reduction should be there. जब हमारे पहले वाले 3 steps आ जाएंगे तो efficiency अपने आप आएगी, और efficiency के साथ साथ complexity भी remove हो जाएगी, क्योंकि हमने start ही simple से किया है. And then above all, questioning and assumptions. So when your product is ready, try to identify, try to question yourself that whether it is giving answers to all your questions. जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मुझे फीमेल्स के लिए कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, I should understand that what is the requirement of the female, है ना.
when I am understanding the requirement of the female, so I have to question on behalf of the female, are my all the requirements fulfilled in this particular product, है ना? तो वो क्या है मुझे, तो जब मैं इसमें बात करूंगी तो क्वेश्चनिंग हो गई मेरी, ठीक है? और जब क्वेश्चनिंग आप कर रहे हैं तो इट माइट बी पॉसिबल दैट इट इज नॉट कंप्लीटली 100% एज पर द रिक्वायरमेंट। और जब कोई चीज हम रिक्वायरमेंट कहीं से शुरू करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, अजम्पशन। जैसे आप लोग रिसर्च करते हो तो हाइपोथेसिस बनाते हो ना कि ये एंड रिजल्ट ये होगा, हो या ना हो, बट बनाते हैं। तो हम भी जब कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो अपनी अजम्पशंस लेके चल रहे होते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसमें ये अज्यूम करके चलना है कि ये उसको इनपुट मिलेगा। जैसे आपका आजकल एक मशीन आई हुई है मार्केट में, उसमें आप है ना आटा डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, वो आटे को अपने आप गूंद देगा। अब अजम्पशन क्या है, मेजरमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अजम्पशन क्या है कि आपने जो मेजरमेंट डाला है वो उसी मेजरमेंट के, अगर आपको डबल करना है, अगर 2 स्कूप्स डालोगे तो उसी के रेशियो में आपका वाटर और ऑयल ले लेगा वो उसके हिसाब से। इट विल मेक, उसको पता है कि इसमें से इतनी चपाती बननी है, तो इट विल मेक दैट वन चपाती, बेलेगा भी, सेकेगा भी, और थोड़ी देर बाद आप उसको पलट देंगे तो सेक के बाहर आ जाएंगे। समझ रहे आप? सो वी हैव assumption associated with the new product. So design thinking is not just thinking about the design, but putting the, ये आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जिसकी दी हुई डेफिनेशन है, जो स्लाइड्स वहां से उठाई है वो एज इट इज डालें, क्योंकि इफ यू रिमेंबर मैंने आपको क्या बताया था, शुड गिवन ड्यू गिवन दैट, ठीक है? सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने अभी आपको बोला डिजाइन थिंकिंग की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द अदर्स। तो इसको क्या बोलते हैं हम टेक्निकली, नाम क्या है इसका, एम्पैथी। ओके, सो हमारा सबसे पहला स्टेप जो है डिजाइन थिंकिंग का, दैट विल बी एम्पैथी। Now understand how the things goes on when I talk about the empathy. This phase is known as the empathize. जब हम empathy की बात करें, this is known as the empathize. So how to develop a deeper understanding of your users? It has certain steps which you have to follow. So how you are going to understand for whom you are making the product? भाई empathy ऐसा तो नहीं है मैंने आपको मिली और मेरे अंदर empathize हो गया और मैंने आपको कर लिया। Yeah. I cannot transfer your knowledge from your head to my head directly. तो क्या करूँगी मैं उसको? हाँ, तो मैं क्या करूँगी? I have to understand now. उस understanding के लिए मुझे 5 steps है मेरे perform करने के। Number 1, consolidate what you do and don't know. Consolidate what you do and you don't know. सबसे पहले, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट माई यूजर, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनाना है। अब उसमें मैंने अभी आपको बताया कि एवरीथिंग इज नॉट नोन टू मी, बट दैट हैज टू बी नोन फ्रॉम हूम, दैट हैज टू बी नोन फ्रॉम द यूजर। सो आई विल फाइंड आउट व्हाट आई नो एंड व्हाट आई डोंट नो टू द यूजर, देन आई कनेक्ट विद योर यूजर ऑडियंस फॉर दैट, because only talking with the 1 or 2 user will not give me the effective results, है ना? भाई सबका अपना अपना प्रोपोर्शन है। अगर मैं रूरल बैकग्राउंड वाली किसी लेडी से बात करूँगी तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है ना, अगर मैं अर्बन से बात करूँगी तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, सेमी अर्बन में बात करूँगी उसकी अलग होगी, हाउस वाइफ से बात करूँगी उसकी अलग होगी, अगर मैं वर्किंग वूमेन से बात करूँगी उसकी अलग होगी, अगर वर्किंग वूमेन में भी कॉर्पोरेट और टीचिंग की बात करूँ, एकेडमिक्स की बात करूँ तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। So only one user is not sufficient for this. I have to connect with user audience. That means lot many of the users are from variety of backgrounds. They are having variety of backgrounds who will give me their inputs. I will take those inputs. अगला सेशन जो होगा, सर एक सेशन और करा देना मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तो उसमें मैंने एक प्रैक्टिकल डिजाइनिंग बना रखी है प्रॉपर, नहीं आप लोग सीख पाओगे इसलिए कह रही हूँ। उसपे है ना मैंने प्रॉपर है ना केस बनाया हुआ, उसके अंदर क्या है, आपको एक प्रोडक्ट आप उसको प्रोटोटाइप डेवलप करें और आप उसको डेवलप कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि इंडस्ट्री में हम इसे कैसे डेवलप करके और इम्प्लीमेंट करते हैं। सो कनेक्ट विद द यूजर एंड ऑडियंस, देन केयरफुली कंसीडर रिसर्च अप्रोचेस। नाउ रिसर्च तो आपको पता ही है क्या करना होता है ना, आई हैव टू रिसर्च करने में क्या करते हैं,
It is not necessary that you are collecting only the data through the primary. You can collect the data from the primary sources as well as the secondary sources, or it can be the club the two type of sources and then take the hybrid mode जैसे हम लोग बोलते हैं. तो उसके बाद पहले हमने क्या किया? We understood what we know and what we don't know. Then we connected with the user audience. Then we did research by taking the feedback of the user audience, and then at that time we are also learning by asking and observing. आप लोगों ने जब BRM पढ़ा था तो उसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था जब हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं? The drawback is that when you are collecting the data, many of the users are giving the answers to the questions without even reading it, without even knowing the exact meaning of that particular thing. तो उसका solution क्या था? Observation. So while I am taking feedback from you, I'll observe you, see how you are giving the answers. है ना? और क्योंकि मुझे तो प्रोटोटाइप बनाना, मुझे तो एक लाइव प्रोडक्ट बनाना है, तो अगर मैंने आपको ऑब्जर्व नहीं किया तो रॉन्ग डाटा मेरे पास आ जाएगा. और रॉन्ग डाटा आने का मतलब ये कोई खाली रिसर्च का एक प्रोजेक्ट नहीं है, एक प्रोटोटाइप, एक मटेरियल बनाना है. सो आई हैव टू ऑब्जर्व व्हाइल टेकिंग योर फीडबैक whether the kind of input you are giving that is a suitable feedback or not. Okay? So I will try to find out that, learn by observing and asking. And while I am observing, if you feel that right kind of input is not coming from her or him, I cross question. I start cross questioning. और जब मैं cross questioning करना start कर दूँगी, interview method पे आ जाऊँगी तो क्या होगा? automatically सही बात निकल जाएगी. यही होता है ना? आपने कहा स्टार्टिंग में शायद आपने ऐसे ही एक सुपरफिशियल आंसर दे दिया, फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा है तो फिर ये बताइए फिर ये कैसे है? तो उसने कहा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है. अच्छा ऐसे है तो फिर अब इसके अंदर जाके मैंने इन डेप्थ और क्वेश्चन पूछे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? मेरे पास राइट काइंड ऑफ आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा. सो लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड आस्किंग एंड देन डेवलप अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी. लास्ट में जाके हमारे पास एक एम्पैथाइज मॉडल है. Why this is an empathize model? Because मैंने users के consent में जाकर users की problems को study करके उस मॉडल को बनाया है. So finally I am developing a shared understanding. Why? Because in that all the inclusions are there from my side, what I know, and from your side which you have given. तो हम यही आ गए ना, consolidate what you know and what you don't know. यहाँ पे इसका आंसर मिल चुका है. I am adding what I know and what I came to know from my users. And so this is known as the empathize model. Okay? So this is the way how, इसीलिए इसको बोलते हैं how to develop a deeper understanding of your users. Because I have understood the whole process, what actually my user wants. Understood? समझ आ गई? भागेंगे नहीं आज, घूमने चलेंगे, चाहे सेशन एक्स्ट्रा मांगेंगे सर से. Suppose I want to open a restaurant. How will I decide upon the menu? आपने देखा है आजकल बड़े आर्टिस्टिक मेनू होते हैं होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के. आप जाते हो तो मतलब जो कॉमन चीज़ें थी वो पुरानी हो गई. पहले क्या था, आप किसी भी होटल में जाओगे, एक नॉर्थ इंडियन का ब्लॉक मिल गया, एक चाइनीज़ का मिल गया, एक इटालियन का मिल गया, और वही उसके अंदर वो 4-5 ऑप्शन हुआ करते थे. जब मैं छोटी थी, when I used to go to the hotel, I never used to get the गट्टे की सब्जी. I never used to get ऐसी सब्जियाँ जो नॉर्मल हुआ करती थी. आजकल सत्तू कितना कॉमन है, सत्तू नहीं मिलता था हमें कहीं पे. वो बनाना है तो आपको है ना जाना पड़ेगा, उसको भुनवाना पड़ेगा, फिर पीसना पड़ेगा, तब बनेगा. बट आज के टाइम पे अगर आप देखो तो think of anything it's there. मिलेट्स का खिचड़ी है. पहले लेडीज जो थी अपने घर में है ना उसको कूट के बहुत टाइम में बना के तैयार करती थी और फिर वो बनती थी, और दैट इज वेरी हेल्दी. बट आज आप चाहोगे तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. आप जोमेटो पे देखो, इट्स देयर, एवरीथिंग इज देयर. हाउ? बिकॉज दे आर स्टडीइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर एंड देन फ्रेमिंग देयर मेनू. 15,000 रुपए में लिट्टी चोखा भी नहीं मिलता था स्पेशलाइज्ड. यू हैव टू गो टू बिहार इफ यू वांट टू टेस्ट लिट्टी चोखा. इफ यू वांट टू ईट द गोबर रोटी यू हैव टू गो टू राजस्थान. सो स्पेशलिटी ये यहाँ की है तो वो वहीं मिलेगी आपको. और अब आप कहीं भी
मिल जाती है। क्यों? Why they are the part of the menu? Because they have understood their users कि आजकल जो शिफ्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है। People are shifting from one location to another location for their livelihood, for doing the jobs, for settling their business, and they miss their local things. So at that time it is necessary that we should keep all those in our menu. So यही इसीलिए यहाँ पे मेनू कार्ड दिया है. When you are deciding this menu card, you have to understand the requirement of the user and then put it in your menu card. Similarly, car. आजकल आप देखो हर साल एक नया वेरिएंट लॉन्च हो जाता है कार में. पहले देखिए तो if I talk about Maruti 800, it ruled over 30 years on the industry. More than 30 years it was there. और Maruti 800 जो है वो एक ही मॉडल बहुत टाइम तक चलता रहा. मारुति 800 का जो एक ही मॉडल था ना पुराने में बहुत टाइम तक वही चलता रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए. क्यों? क्योंकि तब तक लोगों में समझ नहीं थी कि हमें इसमें क्या चाहिए. उनको व्हीकल मिल गया, इट वाज वेरी गुड कि भाई व्हीकल आ. उसके बाद वो फिएट आई, एम्बेसडर आई. अगर कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और उसको है ना कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड थी तो एम्बेसडर ही मिलेगी आपको, एंड दैट टू व्हाइट कलर. वो एक तरीके से बन गया था ब्रांड है ये कि गवर्नमेंट जॉब में कोई है तो उसके पास एम्बेसडर ही होगी. एम्बेसडर विल नॉट बी देयर ऑन होम यूज फॉर द ऑर्डिनरी होम यूज. सो ये क्या है तब थे. लेकिन क्या आज की डेट में इवन आई एम हैविंग 4 कार्स सो आई डोंट हैव द सेम कार. चारों का मॉडल अलग होगा, चारों का वेरिएंट अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, मेरी बेटी की रिक्वायरमेंट अलग है, मेरी डॉटर की रिक्वायरमेंट अलग है, मेरे हस्बैंड की रिक्वायरमेंट अलग है. तो उसी के बेसिस पे हमारे पास गाड़ी है. क्यों? क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग. That's why every year different type of car and variant is launched in the industry. So these are some of the examples. I'm leaving others. Okay, I think you can understand better now. Now we come when I'm talking about the design thinking. I'm talking about the future focused, and I'm talking about which creates value to the society. Why human centered? Because our maximum user is human beings. Why it is future focused? Because अगर आपने फ्यूचर को फोकस में नहीं रखा तो वो तो ऑब्सोलीट हो जाएगा. 4 महीने में प्रोडक्ट हो सकता है जब तक प्रोडक्ट लॉन्च हो तब तक ये खत्म हो जाए, है ना. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यूचर ऑल्सो. प्रेजेंट plus future will give some time for the product to sustain in the market, and then creates value because that should have some value also in the society, in your livelihood anyway. So these are the 3 points which I have to consider while I am deciding and defining my prototype model. So this is how thinking goes on. When stakeholders cannot agree, what the actual problem is there. सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टेक होल्डर जितने हैं वो ही आपस में एग्री नहीं कर पा रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या है. तो ऐसे केस में आप क्या करें? मान लो मेरे पास 5 ग्रुप्स हैं, मेरे 5 स्टेक होल्डर्स हैं और 5 स्टेक होल्डर्स बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट एंटी डायरेक्शंस में जा रहे हैं. तो मैं एक प्रोडक्ट तो डिसाइड नहीं कर सकती. इसका मतलब मेरा तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं. या तो मैं 5 प्रोडक्ट बनाऊंगा, 5 के लिए अलग. आपने देखा है हर प्रोडक्ट के वेरिएंट्स आते हैं. जैसे मेरे पास 4 लेवल हैं सोसाइटी में. एक तो रिच क्लास है, वो लग्जरी आइटम्स यूज करती है. उससे नीचे अपर मिडिल क्लास है जो लग्जरी आइटम्स में भी चली जाती है कई बार, और कई बार लग्जरी आइटम्स में ना जाकर वो आपका हाई या ऑल क्वालिटी जिसके अंदर ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं वो वाली क्लास में चली जाती है. फिर एक मिडिल क्लास है जिसको लोअर मिडिल क्लास भी बोलते हैं हम लोग. वो अपना रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम करते हैं. दे हैव द अफोर्डेबिलिटी सो दे अफोर्ड. और उसके बाद जो हमारी जो लोअर क्लास है पॉवर्टी लाइन के नीचे जिसको हम बोलते हैं, उन लोगों के पास पैसा उतना नहीं है पर हाँ उनको लेकिन रिक्वायरमेंट वो भी है. तो अगर मैं जैसे सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ वॉशिंग मशीन, अगर मैं जाऊँ ना, हमें लगता ही है अगर आप बीपीएल वाले जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं जिन्होंने साइड्स में अपने घर बना रखे हैं छोटे छोटे, उनके पास भी जाएंगे वॉशिंग मशीन हर घर में मिलेगी. इवन भी पीछे जो किसान प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे उन्होंने वॉशिंग मशीन लाइन से लगी हुई थी. हाँ, तो दैट इज बेसिक नीड. अगर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आजकल
बेसिक मिल बन गई है, इसका मतलब एक क्लास। उसके बाद आई मेरी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के अंदर मोस्टली देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, सो दे रिक्वायर अ वॉशिंग मशीन व्हिच हैज सम फीचर दैट उन्होंने लगा दिया तो वो सुबह तक उनको वॉश किए हुए कपड़े मिल जाए, वो सिर्फ ड्राई करेंगे और चले जाएं। दैट इज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब उसके बाद अगली क्लास है, वो थोड़ा लग्जरी पे भी जाती है। वो कहती है वॉशिंग मशीन भी तो ऐसी होनी चाहिए, बट है ना वो ड्राई करने के बाद में है ना थोड़ा सा सुखाने के बाद इस तरीके से निकाले कपड़े को कि वो लगे सलवट वगैरह नहीं करी। तो वो पूरा प्रेसिंग 100% नहीं होती है, पर वो ऐसा कर देता है कि वो मतलब लगता है कपड़ा निकलता है तो कि प्रेस होके आ रहा है। एक हायर वेरिएंट हो गया। अब ये एक ही प्रोडक्ट है बट हर क्लास के हिसाब से उसको अलग से डिजाइन किया गया है। बात समझते हो? सो व्हेन माय स्टेक होल्डर डज नॉट, कोई छिड़ रहा है क्या? स्टेक होल्डर्स कैन नॉट एग्री व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज, देन आई हैव टू लुक फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ, हम मतलब कैसे प्रेस हो रहा है, then lots of data is available but no understanding. Okay, so ऐसे cases solution is complex and fluid. No correlation on cause and effect can be seen in such type of data, and lots of data is available but no understanding on that particular data can come in one go. So we have to create the relations. Dots को जोड़ो, है ना? मेरे पास 5 हैं, तो 5 की एक रिक्वायरमेंट आई, एक रिक्वायरमेंट आई, एक रिक्वायरमेंट आई, एक रिक्वायरमेंट आई। अभी मैंने तुम्हें बताया ये बीपीएल की रिक्वायरमेंट थी, ये इसकी रिक्वायरमेंट थी मिडिल क्लास की, बट बेस तो वही है ना, वो कपड़ा धोना इज द बेस। तो ये डॉट इसके साथ जुड़ गया, इसका मतलब इसमें प्लस लगा दिया। उसके बाद बेस यही था बट इसके अंदर और इंक्रीमेंट इसको चाहिए था, तो ये प्लस प्लस लग गया। फिर ये बेस था, फिर ये प्लस 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 लग गया, फिर ये बेस था, प्लस 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 हो गया। तो वेरिएंट्स आर देयर बट यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। सो इसमें कोई कोरिलेशन आपस में नहीं था, कोई कॉज इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अलग आइडेंटिटी का है, ये अलग आइडेंटिटी का है। बट ये कैसा कोरिलेशन आ रहा है? कोरिलेशन 4 टाइप की है ना, याद करो। 0.25 तक कोरिलेशन जो होती है उसे क्या कहते हैं? लो कोरिलेशन। 0.25 से 5 तक आएगी तो कौन सी है? लो कोरिलेशन। 0.5 to 0.75 ओके। और हमारे केस में क्या है? 5 पार्ट कर दिए, 0.2 ही तो आई। जब 0.2 कोरिलेशन होगी तो क्या बचा? नो कोरिलेशन। तो जब मैं कॉज इफेक्ट निकालने की कोशिश करूंगी डाटा में, जो मैंने फीडबैक लिया है तुम निकलेगी। Lots of data is available but no understanding on it because of no correlation. Data information. Data information. But you can do one thing, that is you can correlate, मतलब आपस में जितना भी होता है हमने उसको जो डॉट्स आ रहे थे अलग अलग से उसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दिया कि हाँ ये आपस में रिलेटेड है, चाहे एक ही पॉइंट पे रिलेटेड है बट हाँ है थोड़ा सा। आप लोगों ने जो आईटी वाले हैं उन्होंने ऊप्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। आरडीबीएमएस पढ़ा? Yes, ma'am. है ना? तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहते हैं? रिलेशन बिटवीन द टू टेबल। टेबल अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक की है जिसको आप फॉरेन की बोलते हो, एक की वो प्राइमरी की है, दूसरे की फॉरेन की है, उससे वो दोनों टेबल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, है ना? सो यू हैव टू क्रिएट द रिलेशन। ओके, ये कुछ तो गड़बड़ हो गई है, आपको मैंने से छेड़ा नहीं। So what are simple and thinking process? Order taken, agenda settled, alignment to higher purpose. This is your process. So now we come to the basically the process. Okay? Journey कैसे चलेगी? सबसे पहले पता कीजिए, are we doing the right things? Are we doing the right things? है ना? अगर आप राइट थिंग्स कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे तो आर वी डूइंग द राइट थिंग्स, फिर दोबारा आगे मूव ऑन करेंगे, फिर हाउ डू वी डिसाइड व्हाट्स राइट। आगे समझ में स्टेप समझ आ गए? आर वी डूइंग द राइट थिंग्स, आर वी डूइंग द राइट थिंग्स, बार बार मैं अपने आप को
क्वेश्चन कर रही है ये पता लगाने के लिए क्या जो मैं कर रही हूँ वो सही है, क्या मैंने जो कर रहा है वो सही है, और फिर ऑटोमेटिकली जब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर करा, हाउ डू वी डिसाइड दैट व्हाट इज राइट? तो इसका मतलब अगर मैं राइट पाथ पे चल रही हूँ तो मैं इसका आंसर दे रही हूँ, तो आंसर देगा तो मुझे थिंकिंग डिजाइन थिंकिंग इज द डिफरेंशिएटर। आज के टाइम में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो मार्केट में है वो डिजाइन थिंकिंग है। वी डोंट नीड द थिंकिंग प्रोसेस ओनली, वी डोंट नीड द डिजाइन सेपरेटली, व्हाट वी रिक्वायर इज डिजाइन थिंकिंग एवरीवेयर। Even I talk about the teaching, if I talk about the product development, if I talk about anything, solution of any problem, I require the design. Okay? So, traditional thinking में हम क्या कहते हैं? What is the right answer? लेकिन design thinking क्या कहते हैं? What is the right question? भाई अगर आपको right question पता होगा तभी तो आप कहोगे कि आंसर सही क्या है। अगर मैंने कहा ये आंसर is right, मुझे question पता नहीं है, तो I'll be nowhere. So, what is the right question? Traditional thinking is the more you talk, you will be able to grab the answer. But ये क्या कहते हैं? More you listen, क्योंकि अब आप feedback ले रहे हो, यूजर से feedback ले रहे हो, इसका मतलब you are listening more. आप अपना perspective उन्हें नहीं बता रहे हो, आप उनका perspective ले रहे हो, इसका मतलब you are listening more. Speaking data. Now here I don't need the data, I need the stories. क्यों? आप जो मुझसे कहना चाहते हो डेटा फॉर्म में मत दीजिए मुझे, अपनी स्टोरी की फॉर्म में दे दीजिए। अगर आप स्टोरी लिखोगे तो डिटेल में बता दो क्या कहना है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट आएगी मेरे पास, अपनी आपसे स्टोरी लिखवानी। If I say डेटा में क्या किया है, मैंने आपको 5 ऑप्शन दे दिए, मैंने कहा इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो, तो क्या आप कहना चाहते थे? कई बार क्या लगता है इन 5 में से एक भी आंसर नहीं है, फिर भी आप किसी एक को मार्क करते हैं, बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ओपन हुई ही नहीं। लेकिन अब मैं क्या कह रही हूँ? स्टोरी बताइए। स्टोरी बताने में क्या होगा? हर पर्सन की अपनी अलग स्टोरी होगी, और जब मैं उस स्टोरी को एनालाइज करूंगी तो आई कम अप विद द कॉमन स्टोरी। हो सकता है मैंने आप लोगों को 40 लोगों को स्टोरी बना के लिखने को दी और मेरे पास 8 स्टोरी बन गया। पॉसिबल है ना भाई? जब मैंने आपसे कहा हर पर्सन ने अपनी अपनी स्टोरी लिखी और कुछ स्टोरी आपस में मैच करती है, तो मेरे पास जब मैंने उसको कोलेट करके मैंने उसको स्टडी किया तो आई केम अप 8 स्टोरीज। फिर उसके बाद मैंने जिन लोगों ने 8 स्टोरीज लिखी थी उन लोगों को दोबारा से बोला कि आप अपनी अपनी स्टोरी को दोबारा रिफाइन करो। दोबारा रिफाइन करेंगे तो हो सकता है बीच में और कनेक्टिंग पॉइंट आ जाए, और कनेक्टिंग पॉइंट हुआ तो हो सकता है 8 से मेरे पास 4 ही स्टोरी रहेगी, होता। और फिर मैं 4 के ऊपर दोबारा काम करूंगी तो मे बी आई रीच द सम 1 और 2 और 3 पॉइंट, बट डिफरेंट वंस, अलग अलग नजरिए, टोटल अलग अलग नजरिए। तो आई कैन डेवलप 4 प्रोडक्ट्स नाउ, 4 वेरिएंट्स। एक ही से चली थी पर 4 वेरिएंट मेरे सामने आ गए, क्योंकि ये 4 वेरिएंट्स, क्योंकि बेसिक जो था स्टोरी लिखने का वो सेम था। सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा आप है ना दो करके 2 फ्रेंड्स आपस में साथ साथ बैठ जाइए, एंड आई गिव यू द एक्सरसाइज दैट व्हाट गिफ्ट यू विल गिव टू योर फ्रेंड दैट ही लाइक्स इट मोस्ट। What gift you will give to your friend that she likes it most? तो क्या करोगे आप? उसको है ना थोड़ी बातें करना शुरू करोगे, ये जानने की कोशिश करोगे what does she wants or what does he wants as a gift। जिस चीज़ की उसको कमी है, जिसको देख के खुशी होगी, तो आप थोड़ा थोड़ा इधर की बात और पूछना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली हिंट मिल जाएगा कि उसे क्या चाहिए। The same case is here also when I am asking about the story। जब वो बताना शुरू करेगा पर्सन तो मुझे पता चल जाएगा कि उसको चाहिए क्या। ओके, सो ऑर्डर टेकर, ये वापस नहीं आ गया। ओके, देन इवेंट्स। ट्रेडिशनल में हम इवेंट्स क्रिएट करते थे और इसमें एक्सपीरियंस मैटर्स। देन talk about the facts. Here we are talking about the feelings, not about the facts. Feelings of events.
because feelings is what will give the need. What will give the need? Why it's so. It's a five steps process. How do we design? सबसे पहला स्टेप हम डिटेल में कर चुके हैं, that is empathize. जब empathize हो जाता है फिर we define करते हैं, we will define, then ideate, prototype and test. And the cycle goes on and your product is developed. So this is the design thinking process, a non-linear process. Non-linear क्यों होता है कि linear तो है नहीं, one after another नहीं चल सकता है ये process because it's related to the direct. अभी जब हम फीलिंग की बात करें, they cannot be linear. Okay? So empathy helps to define the problem. सबसे पहले empathy which helps to define the problem. So ये हमारे पास problem आ गई. अब हमारे पास जब problem आ गई, तो अगला step क्या था हमारा idea, है ना? So उसके बाद फिर हम करेंगे define. So basically this particular test creates new ideas for the project. अब इसको ऐसे क्यों दिखाया है? Because it है हमारी. आप देख रहे हैं, this is basically the final output. So it can go back to the empathy also, and it is also creates the new ideas for the project. Similarly, इससे related क्योंकि ये हमारे 5 steps हैं, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? These are the 5 steps. 1, 2, 3, 4, and 5. Again from here, when I am talking about the prototype, sparks a new idea. कई बार जब हम प्रोटोटाइप बना रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई और दूसरा भी इसके अंदर एडिशन किया जा सकता है. So it is coming back over here. Similarly, when my final is there, that means feedback is there, test, renewal, insights that redefine the problem. Again, it is going to the idea curve. Okay? So these are the 5 steps. हमारे डिजाइन प्रोसेस के 5 steps हैं ये 2, 3, 4 and 5. And these lines are showing the relationship between these steps together. How the cycle goes on with each other. That is given over here. Understood? कुछ बताना तो नहीं? चले आगे? So this is how the things are going on. Then we come to the laws of design thinking. There are 3 laws of design thinking. That is your less is more. Focus on what matters the most to remove the redundancy in what we offer. सबसे पहला लॉ क्या है? Less is more. That means focus on what matters the most to remove the redundancy in what we offer. क्योंकि repeatedly same चीज को तो repeat करते नहीं है. जो IT वाले लोग हैं उन लोगों ने तो है ना, आपने देखा होगा, even if I am designing some software, at that time I am removing the redundancy from the table, जिसे हम normalization बोलते हैं, है ना? हम normalize करने में क्या कर रहे होते हैं बेटा? reduce करते हैं ना, ताकि टेबल के अंदर कोई भी रिपीटेड कॉलम ना आ रहा हो, तो उससे स्पेस भी वेस्ट होगा, रिडंडेंसी होगी तो कंसिस्टेंसी भी नहीं होगी, कम हो जाएगी डेटा में. तो ठीक है, सो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट. थ्योरी ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, ये बहुत अच्छी थ्योरी है. Prioritization should be exponential, not linear. Focus on 1000 gram items rather than the many 10 gram items. देख रहे हैं कैसे? ये 10 ग्राम आइटम है, ये 100 ग्राम का आइटम है, ये 1000 ग्राम का आइटम है. अब ये 1000 ग्राम तो ऑलरेडी है ही ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम छोटी-छोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं और वो छोटी-छोटी चीजें बहुत सारी होती हैं, तो हम किसी एक पे फोकस नहीं कर पाते. इस बेटर कि आपको जो बड़ी वाली प्रॉब्लम है, जो बड़ा वाला फोकस है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस है. तो प्रायोरिटाइजेशन शुड बी एक्सपोनेंशियल एंड फोकस ऑन द 1000 ग्राम आइटम rather than many 10 ग्राम आइटम्स, बिकॉज़ 10 ग्राम आइटम्स का जो इम्पैक्ट होगा वो लेस होगा, और जबकि 1000 ग्राम का चाहे वो एक ही आइटम है बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा. सो वी शुड ऑलवेज वर्क इन सच अ वे दैट हाई इम्पैक्ट in less work can be there. Minimum efforts and higher output. और वो कब मिलेगा मुझे? जब मैं 1000 ग्राम पे ज़्यादा फोकस करूँगी instead of multiple 10 ग्राम और 100 grams. ये सबसे ज़्यादा पावरफुल लॉज है मेरे पास. यहाँ पे इसका 1000 ग्राम का मतलब क्या है? बेसिकली जिस पर्टिकुलर पॉइंटर की वेटेज ज़्यादा है उस पर फोकस करें. Then 3 laws of design thinking में
अगला है लास्ट 2% इज इक्वल टू 200%। कई बार क्या होता है, हम काम करते रहते हैं और कुछ थोड़ा सा लूप होल छोड़ देते हैं, और ये जो थोड़ा सा लूप होल छोड़ देते हैं ना, यही बहुत होता है पूरी के पूरी आउटपुट को डिस्ट्रॉय। एंड खराब हो गया तो फिर तो सारा ही कुछ खराब हो गया ना। सो क्लोजिंग इज वेरी नेसेसरी, क्लोजिंग इज important. That's why we are saying that last 2% is equal to 200%. 100% we need 200%. If that closing is there, then you are successful. और ये जो एक पॉइंटर छूट जाता है ना, वो पॉइंटर क्या करता है, डिससैटिस्फैक्शन पैदा करता है। So finding our USP, और ये 2% क्या है, अपनी USP पे काम कीजिए ताकि USP में you don't fail. Identify the differentiator which will make a big impact. उस particular point पे आपको काम करना है। That's why it is 2% that will create the impact 200%. So तीन हमारे क्या होगा, summarize करें तो less is more, theory of prioritization, and last 2% is equal to 200%. Next we come to the persona. इसमें कुछ एक्टिविटीज हैं, एक दो पढ़ लेते हैं, बाकी छोड़ देंगे फिर नेक्स्ट क्लास में डिवाइड करेंगे। पर्सोना होता है हम इंडिविजुअली एक पर्सन के बारे में स्टडी करते हैं। पर्सोना ऐसे बनाया जाता है, यही एक एक्सरसाइज थी जो मैं आपको प्रैक्टिकली कराना चाहती थी, बट वी डू नॉट हैव दैट पर्टिकुलर टाइम। ये बना हुआ है, आप देखते हैं बैकग्राउंड, मोटिवेशन, डाउट्स, एस्पिरेशंस, चैलेंजेस फेस, construct a story while explaining the persona, your peers, documenting insights. ये बड़ा important document है while you are taking the feedback and designing your product. इसी के basis पे हम लोग अपने product को design करते हैं। कुछ दिखा? बता दो, कुछ समझ आता है? ठीक है। बता दो, इसकी story बता दो। फर्स्ट ऑफिस जाती है, फिर ऑटो से जाती है, अपने फादर के साथ गई थी, ये मेरे फादर हैं, इंट्रोडक्शन भी कराया, और इसका स्लोगन क्या था, चमकते रहना। तो पर्सोना क्या डेवलप करूँगी, मैं अब डेवलप करने को नहीं दे रही हूँ, सीधा आंसर पे आ जाती है। सो बैकग्राउंड, इसका नाम क्या है, पार्वती। एडवर्टाइजमेंट में पता चला था इसका नाम पार्वती है, तो ये क्या है मेरी assumption? भाई एडवर्टाइजमेंट में जब मैंने देखा उसके अंदर नाम नहीं पता चला ना, तो ये क्या मेरी assumption है कि इसका नाम पार्वती है, राइट? यूजर बैकग्राउंड क्या है, belongs to a middle class family, क्योंकि ऑटो से आई है, ग्रेजुएट इन आर्ट्स कॉलेज, क्योंकि उसकी जॉब वहाँ बैंक में लगी है, मोर देन वन सिबलिंग, क्योंकि उसके फादर के जब वो बात कर रही थी तो इस तरीके से उसने पोर्ट्रेट किया है। Could be a working woman or a homemaker or a recently graduated student. Because वहाँ पे वो इंट्रोडक्शन जब करा रही है अपने फादर का, तो ये पता नहीं चल रहा है उसके फर्स्ट डे का जॉब का है, ट्रेनिंग का है, किस चीज़ का है। सो क्या हो गया उसका बैकग्राउंड। अब आता है challenges faced. He is the detergent within the budget that takes care of the clothes. क्योंकि उसने white clothes के बारे में बात की है ना। उसके बाद spending too much money on detergents and other natural resources like water नहीं कर सकती वो। Unable to portray her integrity and uprightness, but ये चाहती है कि she should be outstanding. She should be outstanding. Now we come to the motivation. Excellence in whatever she does. Good feedback about her activities, either peers or neighbors or the families. Doubts क्या कहते हैं? She doubts that colleagues envy her and doesn't want to handle any issues. First है ना delivery. Example: a spot of dirt on the cloth uniform should not become a major embarrassment for her. That's why she was very much. Yes. Then aspiration, she wants to stand different from the crowd, either in the neighborhood or at her workplace. Wants to make her parents and siblings proud. The target user wants herself to be unique among her peer group and carries. समझ आया? This is how you develop the
पर्सोना। जब हम डिज़ाइन थिंकिंग की प्रैक्टिकल काम करते हैं तो हम पर्सोना डेवलप करते हैं हर यूजर का, सो दैट वी कम टू नो बेसिकली सब पता चल गया ना, इसमें बैकग्राउंड पता चल गया, चैलेंज